Hello, students. In the previous lecture about the story of village Palampur, we have learned about how the land is distributed among the farmers in Palampur, what are the problems faced by the poor farmers who do not have any land. They are forced to work on the land of big farmers. They were not able to get the fair wages from the big farmers. They are forced to take the loan from the money lender instead of bank. So, and how they are sell their surplus of crop in the market for earning money. Now in this lecture I am going to discuss with you the non farming activities conducted by the different people in the village Palampur. Different types of non farming activities in Indian villages are some of the persons involved in in opening a shop, some of involved in transport, some of involved in dairy farming. So different types of non farming activities are performed by the people in the village. So first go through the definition of what is non farming activities. So, the non farming activities are the activities which are not related to farming or agricultural activities. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो अदर देन फार्मिंग कृषि के अलावा जो दूसरे कार्य हैं. And the non farming employment is defined as any form of employment other than farm employment in this type of wages, self or unpaid family labor. And generally this type of non farming activities, most of the family members are involved in, particularly in the village area. ज़्यादातर गाँव में परिवार के सदस्य ही इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सहयोग करते हैं. So, as per the village Palampur is concerned, we have learned about farming as the main production activity in Palampur. ये हमने पहले भी पढ़ा कि पालमपुर का सबसे मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है. We shall now took a look at some of the non-farm production activity. And you remember only 75% people are engaged in farming. It means only 25% of the people working in Palampur are engaged in the activities other than एग्रीकल्चर. तो जो 25% लोग हैं वो वही लोग सिर्फ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. The first type of non farming activities conducted by the people of Palampur is dairy. Dairy means dugdh ka utpadan. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and bajra that grows during the rainy season. ये हमने पढ़ा है कि ज्वार बाजरा वहाँ की मुख्य फसल है और बरसात के सीजन में लोग इसे बोते यानी कि उगाते हैं और इन्हें अपने जानवरों के लिए खिलाने के लिए रखते हैं. द मिल्क इज सोल्ड इज इन रायगंज एंड द नियर लार्ज विलेज. और जो भी दूध का उत्पादन होता है उसे नज़दीक का जो शहर है बड़ा विलेज जो है रायगंज वहाँ पर बेचा जाता है. टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. और जो दो विक्रेता हैं जो कि शाहपुर जो बड़ा टाउन है वहाँ का, उन लोगों ने एक कलेक्शन सेंटर खोल रखा है रायपुर में रायगंज में, जहाँ पर हर गांव से दूध इकट्ठा होता है. वो लोग वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और दूसरे बड़े शहरों तक और बड़े नगरों तक उस दूध को पहुंचाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज Palampur are engaged in dairy farming. They are producing the milk from their buffaloes, feeding through jowar and bajra and collecting the milk at a center point
and sold the milk in big cities and towns through the traders of Shahpur. The second type of non-farming activity is a small scale manufacturing in Palampur, जो छोटे और लघु उद्योग हैं जिन्हें हम कहते हैं. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. तो जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 50 से कम लोग लगे होते हैं. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production methods and are done on a small scale. अब जिस तरीके से बड़ी फैक्ट्री शहरों में हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में है यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोडक्शन होता है और एक छोटे स्तर पर होता है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. और जो लोग इसमें काम करते हैं वो ज़्यादातर परिवार के सदस्य होते हैं और इस तरह के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है घर में या बाहर लगाई जाती हैं. रेयरली आर लेबर्स हायर्ड, और बहुत कम ही ऐसा मौका आता है कि जब किराए पर बाहर से मजदूरों को रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर घर के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नाउ वन ऑफ द पर्सन ऑफ पालमपुर village, that is Mishri Lal, has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. अब जैसे मिश्री लाल जो है उसने एक मशीन खरीदा जो कि बिजली से चलती है और उसे अपने फील्ड में अपने खेत में लगाया. सुगर कैन क्रशिंग was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machine these days. पहले लोग गन्ना पेरने के लिए जो है मशीन जो है बैलों का उपयोग करते थे. बैल के द्वारा जो है मशीन चलती थी और गन्ना की पिराई होती थी, लेकिन आज जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ सुगर कैन क्रशिंग मशीन. प्रीवियसली दिस इज़ ऑपरेटेड थ्रू द बुलक्स, बट नाउ दिस इज़ ऑपरेटेड थ्रू electricity. Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and process it into jaggery. मिश्री लाल भी वही करता है, दूसरे लोगों से गन्ना खरीदता है, ले आता है, उसे पेरता है और उससे गुड़ बनाता है. The jaggery is then sold to traders at शाहपुर, और वो इस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है. In the process मिश्री लाल मेक्स a small profit, और इस प्रोसेस के थ्रू मिश्री लाल जो है कुछ लाभ कमाता है. तो किस तरीके से मिश्री लाल ने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप किया. पहले जो वो गन्ना जो है बैलों के द्वारा जिसकी पिराई होती थी, आज उसने बिजली की मशीन खरीदी और उससे गन्ने को जो है प्रोसेस किया, उसको पेरा, उससे रस निकाला और उससे गुड़ बना करके शहर में बेचा. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ activities conducted by some people in Palampur is a shopkeeper. People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. यानी कि जो लोग जो हैं सामान खरीदते बेचते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the villages. कुछ जो यहाँ के सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, वो लोग जो है बड़ी मार्केट से सामान, जो थोक विक्रेता होलसेलर्स हैं, वहाँ से सामान खरीद के लाते हैं और गांव में बेचते हैं. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. आपने ज़्यादातर गाँव में देखा होगा कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ की ये सारे सामान जो ज़रूरत के रोज़मर्रा के जो सामान है, ये जो ईज़िली अवेलेबल कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ये शॉपकीपर के द्वारा गांव में बेचे जाते हैं. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop.
और जिनके घर बस स्टैंड या यातायात की जहाँ सुविधा है वहाँ पर अपनी छोटे से घर में एक जगह है तो वहाँ एक दुकान खोल लेते हैं और उसमें सामान बेचते हैं। दे सेल ईटेबल्स ऑल्सो, और खाने पीने की चीज़ें भी वो लोग बेचते हैं। You see in the picture how the people open a small shop in the village. They are arranged, they make the available of regular use item in their shop. So the small farmers are not worried about the regular used item. They are not face any problem in purchasing this regular used item from the cities or from the town. This is a picture of a small shopkeeper in the village. You see here how a woman sell the clothes near the bus stand. You see in this picture, this is one of the part of non farming activities. Can you tell me what is this? This is a computer class. This is computer class center, and this type of activity is also started by one of the person in Palampur. So the student of their village are not facing a problem to go a long distance to earn this computer education, and this is with the help of uh, two girls of their own village. Karim is the person has opened a computer class center in the village. In recent year, a large number of students have been attending college in शाहपुर town, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ा वहाँ का शहर है शाहपुर, वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे। Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. और करीम ने ये देखा कि उसके गांव के भी जो छात्र हैं वो बड़े शहर में कंप्यूटर क्लास सीखने जा रहे हैं। There were two women in the village who had a degree in the computer application. और उसने पाया कि उसके गांव में जो दो औरतें हैं उनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। So he decided to employ them. और उसने तब ये निश्चय किया कि वो उनकी सहायता से क्यों ना कंप्यूटर क्लास अपने कंप्यूटर सेंटर अपने गांव में ही खोले। He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. और इस सारी व्यवस्था के लिए उसने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्लास सेटअप किया अपने घर में, और ताकि मार्केट में आने जाने वाले सभी लोग इसके बारे में जान सकें। एंड हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट शाहपुर जाकर के कंप्यूटर क्लास को लर्न करते थे, अब वो लोग गांव में ही रह करके करीम के कंप्यूटर सेंटर में ही कंप्यूटर सीखने शुरू कर दिए। नाउ द नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि पालमपुर जो है शहरों से और बड़े गांवों से शहरों के द्वारा जुड़ा हुआ है और उस पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, आने जाने की सुविधा अच्छी है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगे आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। कोई रिक्शा वाला है, कोई टांगा चलाता है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर है, कोई बैलगाड़ी चलाता है। तो इस ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी, यातायात की सर्विस में भी लोग जुड़े हुए हैं गांव से। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वो लोग शहर से गांव लोगों को ले जाते हैं, शहर से फिर गांव ले आते हैं और इसके बदले उनसे पैसा लेते हैं। The number of people involved in transport has grown over the last several years. और धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ते जा रहे हैं। This is the story of Kishore. He is one of the farm laborer of Palampur. Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family needs from the wage that he received. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पालमपुर में जो मज़दूर हैं जिनके पास खेती बहुत कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर है, उनके पास सफिशेंट फूड नहीं प्रोड्यूस होता, क्रॉप नहीं प्रोड्यूस होती जिससे अपने फैमिली
के खाने की व्यवस्था कर सके, या अगर वो किसी के खेतों में भी काम करते हैं तो उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिलती है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक, और इस दिक्कत के कारण किशोर ने कुछ साल पहले बैंक से लोन लिया। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, और उसे ये लोन जो है सरकार के द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के द्वारा मिला, जिसमें सस्ते दर पर जो भी लैंडलेस, जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, उन्हें लोन दिया जा रहा था। तो किशोर ने भी एक लोन लिया। किशोर बॉट ए बफेलो विद दिस मनी, और इस लोन से उसने भैंस खरीदी। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, और धीरे धीरे वो दूध बेचना शुरू कर दिया। फर्दर ही हैज अटैच ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेड इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। धीरे धीरे उसने एक गाड़ी भी का व्यवस्था किया और उसे भैंस के साथ लगा दिया, ताकि वो एक ट्रांसपोर्ट का भी काम करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. हफ्ते में वो एक दिन गंगा के किनारे जाता, वहाँ से जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं उनके लिए मिट्टी ले आता था। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विथ ए लोड ऑफ जैगरी और अदर कॉमोडिटीज़, और जो है कभी कभी वो शाहपुर भी जाता था ताकि जो लोगों के द्वारा गुड़ बनाया गया है उसे बेचा जा सके। गन्ना भी सप्लाई करने जाता था और दूसरे सामान को भी पहुंचाने शाहपुर जाया करता था। इवन मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और महीने में वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता था, दूध बेचने डेयरी का भी काम करता था। एज ए रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, और आज जो किशोर है वो क्या है, आज काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है जो कि वो कुछ सालों पहले नहीं कमा पाता था। तो फ्रॉम दिस lecture, I think you understand how the people are engaged in different types of non-farming activities in Palampur. Some of them are engaged in running computer centers, some of them are running working as a shopkeeper in the village, some are involved in dairy farming, sell the product, some of them are engaged in making plates, some of in pottery. So like this, these different peoples are engaged in different types of non-farming activities other than farming activities.